हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन AB only, AB and CD, BC and DE, BC only. Question number 2, the force exerted by the floor of an elevator on a foot of a person standing there is more than the weight of the person if the elevator is going up and slowing down, going up and speeding up, going up, going down and slowing down, going down and speeding up. Which of the above options is are correct? 1 only, 2 and 3, 2 only, 2 and 3, 2 and 4. Question number 3. If the tension in the cable supporting an elevator is equal to the weight of the elevator may be going up with an increasing speed, going down with increasing speed, going up with uniform speed, going down with uniform speed. Which of the following is are correct? 1 and 2, 1, 2 and 4, 3 and 4, 1 only. Question number 4. A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. The tensions in the two strings are: G is 10 meter per second square, 2 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 3 Newton, 5 Newton, 3 Newton, 5 Newton. Now solution. Question number 1. The figure shows the displacement of the particle going along x-axis as a function of time. The force acting on the particle is zero in the region AB only, AB and CD only, BC and DE only, BC only. जो फोर्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma. अगर एक्सेलरेशन है पार्टिकल में, देन ए फोर्स इज एक्टिंग. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स डज नॉट एक्ट. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is acceleration. If velocity is constant, then acceleration is zero and no force act. No force is acting. जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट इज वेलोसिटी. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम ए बी को देखें तो दिस इज कांस्टेंट, हेंस इन दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नो फोर्स इन दिस रीजन. सिमिलरली अगर सी डी को देखें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, नो फोर्स एक्टिंग. अगर BC है तो यहाँ पर
velocity is changing with time and DE में भी velocity is changing. तो CD और DE में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स एक्सेलरेशन है, इट मीन्स फोर्स एक्ट कर रही है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए बी एंड सी डी. दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द person standing there is more than the weight of the person if the elevator is going up and slowing down, going up and speeding up, going down and slowing down, going down and speeding up. Which of the following options are correct? 1 only, 2 and 3, 2 only, 2 and 4. सपोज एक फ्लोर है, एलिवेटर का फ्लोर, इस पर मैन इज स्टैंडिंग. मैन का जो वेट है W इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और जो फ्लोर की रिएक्शन है दैट इज अपवर्ड. फ्लोर रिएक्शन R is upward. The floor of elevator, force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing there is more than the weight. कंडीशन है कि ये किस कंडीशन में R is greater than W. तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, फर्स्ट गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, ऊपर की तरफ जा रहा है और स्लोइंग डाउन. स्लोइंग डाउन इट मीन्स डाउनवर्ड फोर्स इज मोर. अगर इसको मास m है और दिस इज mg. गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, slowing down it means W is greater than R and this is रिटार्डेशन. ma के इक्वल होगा, तो R की वैल्यू हो जाती है W माइनस ma. इस कंडीशन में जो R इज लेस देन W, एंड दिस इज नॉट करेक्ट. सेकेंड कंडीशन, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, इट मीन्स R इज मोर देन W. तो R और W का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू ma, और R विल बी W प्लस ma. It means R is greater than W. This is correct. 3. Going down and slowing down, नीचे की तरफ जा रहा है और स्लो कर रहा है. It means जो अपवर्ड फोर्स है R is more than W, that is ma. R is W plus ma और R is greater than W. ये स्लोइंग डाउन तब होगा जब नीचे की तरफ जा रहा है. स्लोइंग डाउन इट मीन्स ऊपर की फोर्स अधिक है डाउनवर्ड फोर्स से. दिस इज करेक्ट. एंड फोर्थ देखें, फोर्थ कंडीशन, गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, नीचे की तरफ जा रहे हैं, गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, इट मीन्स W इज ग्रेटर देन R. W माइनस R इज ma और R इज W माइनस ma. It means R is less than W. This is not correct. So 2 and 3 are correct. This B is correct option. Question number 3. If the tension in the cable supporting an elevator is equal to the weight of the elevator may be going up and increasing speed with increasing speed, going down with increasing speed, going up with uniform speed, going down with uniform speed. Which options are correct? 1 and 2, 1, 2 and 4, 3 and 4, 1 and 2. एक एलिवेटर
सपोज दिस इज एलिवेटर और एक केबल से बंधा है। ये केबल के कारण इसमें एक टेंशन टी है और एलिवेटर का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जो कंडीशन चेक करनी है कि एलिवेट इक्वल टू टी इज इक्वल टू डब्लू। डब्लू सपोज इसका मास इज ए एम, तो ये डब्लू इज एम जी। फर्स्ट कंडीशन, गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, इट मीन्स टी इज ग्रेटर देन डब्लू एंड दैट इज इक्वल टू एम ए। जो इनका डिफरेंस होगा तो टी माइनस डब्लू इज इक्वल टू एम ए और टी इज डब्लू प्लस एम ए। तो पहली कंडीशन है में जो है टी इज नॉट इक्वल टू डब्लू, दिस इज नॉट करेक्ट। गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, नीचे की तरफ जा रहा है, इट मीन्स डब्लू इज मोर देन टी एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू एम ए। इस कंडीशन में भी टी इज नॉट इक्वल टू डब्लू, दिस इज नॉट करेक्ट। गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, गोइंग अप टी माइनस डब्लू, speed is uniform, it means acceleration is 0, this comes to be 0, तो t is w, t w के इक्वल है थर्ड कंडीशन में, दिस इज करेक्ट। गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, फोर्थ, w माइनस टी इज एम ए एंड ए इज 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0, दिस इज 0, तो w इज इक्वल टू टी, दिस फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। So 3 and 4 are correct. This C is correct option. Question number 4. A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling of a light string. From the ceiling, a second block of mass 0.30 kg is suspended from the first block through another string. The tensions in the two strings are G is 10 meter per second square, 2 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 3 Newton, 5 Newton, 3 Newton, 5 Newton, 3 Newton. Suppose this is M1 and this is M2. एक सीलिंग है, सीलिंग से एक स्ट्रिंग के सहारे से 2 kg, M1 mass, M1 is 0.2 kg, इस यहाँ से अनोदर स्ट्रिंग से M2 M2 is suspended. So ये A पॉइंट, B एंड C, ए बी में जो टेंशन है दैट इज T1, यहाँ पे भी T1 होगा, बी सी में टेंशन T2 एंड दिस इज आल्सो T2। इसका वेट M2G एंड इसका वेट डाउनवर्ड M1G। in this condition they are in equilibrium। हम C पर लगी फोर्सेस को देखें, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, acceleration is 0, hence M2 into 0 is equal to 0. So T2 is equal to M2G, 0.3 into 10 is equal to 3 Newton। जिसमें टेंशन है दैट इज 3 न्यूटन। अब M1 को देखें, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन इज 0, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स,
T1 is equal to m1g plus T2. m1 is 0.2 into 10, or T2 is 3 Newton. 2 plus 3 is equal to 5 Newton. तो जो टेंशन्स हैं दैट आर 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन. दिस C is correct option.